دوں گا کلام کو. آج وہ ہمارے ساتھ کلام کو شیئر کریں. آج ہم تھوڑی دیر غور کریں گے مکاشفہ 12 باب اس کی 11 آیت. مکاشفہ 12 باب اور اس کی 11 آیت. خدا پاک کلام میں یوں لکھا ہے. بلکہ 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں. مکاشفہ 12 باب 10 آیت. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز سنی کہ ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوگا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، آئے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. آج ہم غور کریں بالخصوص 11ویں آیت کے اوپر. وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. پہلی بات ہے دیکھیں برہ کا خون، اس کو سمجھنا ہے کون ہے کیا ہے، اور اپنی گواہی، میری گواہی کیا ہے، اور اس پر غالب آئے. پہلی بات دیکھیں گے برہ کے خون سے کیا مراد ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت سے خون ہوتے ہیں، عیسائی لوگ بھی بکرے ذبح کرتے ہیں، ریٹیں ذبح کرتے ہیں، قربانی کے دنوں میں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. یہ برہ کا خون کون سا ہے؟ آپ اس کا جواب دل میں دیں، بلکہ آہستہ آہستہ بول سکتے ہیں. یسوع. بائبل میں بہت سی تشبیہات استعمال ہوئی ہیں. یہ خدا کا برہ یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ برہ کے خون گواہی کے کلام اور اس پر غالب آئے. برہ کا خون جو ہے یسوع مسیح کا خون، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ برہ کا خون جو ہے اس سے کیا مراد ہے. پہلی بات ہے کہ یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر مصلوب ہوا. یسوع مسیح کون ہے؟ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یسوع کی بات تو مان لیتے ہیں. یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو کامل خدا اور کامل انسان ہے ایک ہی وقت میں. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ کس طریقے سے خدا خود زمین پر آ گیا اور ایک انسان کی شکل اختیار کر لی. خدا ہمارے عقیدے میں بھی ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے. وہ کیوں زمین پر آیا؟ کیا وجہ تھی کہ خدا خود زمین پر آ گیا؟ آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہوگا، سوچیں. اس لیے کہ انسان نے گناہ کیا، گناہ گار ہو گئے، اور خدا آیا ان کو بچانے کے لیے. عام بات ہے، مرغی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اوپر سے جب وہ دیکھتی ہے چیل وغیرہ آ رہی ہے، بعض رہتے وہ بچے خود ہی گھس جاتے ہیں، مرغی چھپاتی ہے اس کو، اس کے بچے ہیں. ہم پر بھی جو آفت آئے کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارا گھر محفوظ رہے. ایک زمانے میں ماڈرن پور اسلام آباد میں بہت زیادہ غیر مسلم نے حملہ کیا، اور ماڈرن پور ایک مشنری کے نام پر ہے، اور بہت سے مشنری تھے. انہوں نے دعائیں کی
کہ بھی اس گاؤں کے لوگوں کو بچا. دعا کے جواب میں اس گاؤں کو خدا نے بچایا. بہت سی مثالیں ہیں. خدا نے ہم کو پیدا کیا اور ہم لوگ گناہ میں گر پڑے. گناہ کیا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا. آج کے موضوع میں بولتے ہی آتا ہے. خدا چاہتا تھا کہ ہمیں بچائے, ان کو سمجھ نہیں آئے کہ کیسے بچائے. جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. ہم نے مرنا تھا. یہ قانون ہے, شریعت کا قانون ہے. اب وہ کیسے بتاتا, خدا کیسے بتاتا کہ آپ نے بچنا ہے. ایک کیڑی تھی, آپ نے کیڑیاں اکثر دیکھی ہوں گی. ان میں آگے تھوڑا سا پانی تھا, انہوں نے ادھر جا کر مرنا تھا. تو ایک شخص تھا, اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیڑیوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہاں نہ جائیں. وہ اس نے کیڑی کی شکل اختیار کر لی, چھوٹی کیڑی بن گئی. پھر ان کیڑیوں کو بتایا کہ اس طرف نہ جائیں, یہ جگہ خراب ہے. خدا اتنا بڑا ہے, آسمانوں سے پر بھی نہیں سما سکتا. وہ خود انسان بن گیا تاکہ ہمیں بتائے کہ ہم گناہ گار ہیں. آپ کو پتا کہ ہم گناہ گار ہیں. میں نے گناہ کیا, سب نے گناہ کیا. اور اگر ہم نے گناہ کیا تو کہاں جائیں گے؟ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. سب نے مرنا ہے. خدا نے کہا کہ نہیں, ان کو بچانا ہے. کیوں؟ خدا نے ہمیں پیدا کیا. ماں باپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں, اگر کوئی بچہ گرے یا کچھ سنبھالتے ہیں. خدا ہمارا جو خالق ہے اس نے کہا نہیں, ان کو بچانا ہے. وہ خود زمین پر آ گیا اور انسان کی شکل میں آ گیا. خالی انسان کی شکل میں آ کے تو بات نہیں بنتی ہے. ایک قانون کو پورا کرنا ضروری تھا. قانون کیا تھا کہ جو جان مرے گی, گناہ کرے گی وہ مرے گی. اور دوسرا قانون کیا کہتا ہے موسیٰ کی شریعت میں, کہ جان کے بدلے جان, اور دانت کے بدلے دانت, اور آنکھ کے بدلے آنکھ. جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اس جان کے بدلے کوئی اور جان دے گا تو پھر وہ بچے گا نا. اور خدا نے ایسا انتظام کیا کہ برہ جو یسوع مسیح ہے اس کو قربان کیا, میرے گناہوں کی خاطر, آپ کے گناہوں کی خاطر, تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے آزاد ہو جائیں اور خدا ہمیں قبول کر لے. یہ برہ کا خون ہے کہ کس طریقے سے خدا نے ایک پروگرام بنایا. ہم تو کہتے تو ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, ایک سسٹم ہے, ایک انتظام ہے, اس انتظام کے مطابق چلتے ہیں. اب ہم آئے ہیں, ہماری ٹیم آئی ہے, باہر ہی سڑک پہ ہو کے ہم بولنا شروع کرتا ہوتا, وہ تو کوئی بات نہیں. ہمارے جو انچارج ہیں انہوں نے پہلے ٹیلی فون کیا, رابطہ کیا آپ لوگوں سے. آپ لوگوں نے بتایا جو بھی آپ کا انتظام تھا کہ اس جگہ آ جائیں, اس جگہ آ جائیں تو ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے عبادت کریں. ایک سسٹم ہے نا. یہی میں بات بولتا جاتا ہوں, لوگوں نے پاگل بول رہے. خدا نے ایک انتظام بنا دیا. اس انتظام کے تحت ہم گناہ گاروں نے مرنا ہے سب, اور بچنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی قربانی کرے, جان کے بدلے جان. اور برہ کا خون بہایا گیا تاکہ میں بچ جاؤں. رومیو 8:37 آیت, ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا. ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا. یوحنا 16:11 آیت, دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا. دنیا کا انچارج کون ہے؟ اکثر اوقات اس کا جواب غلط مل جاتا ہے, میں خود جواب دوں گا, آپ کو کہیں کو پتا ہوگا. دنیا کا انچارج, دنیا کا سردار شیطان ہے. یاد رہے, فی الحال خدا نے دنیا شیطان کے والے کی ہے. جیسے ہم مثال سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ہے پرائم منسٹر, اس کا نام آپ کو پتا ہوگا, اور ہر صوبے کا علیحدہ علیحدہ ایک چیف منسٹر ہے, اور صوبے کے اوپر جو انچارج ہے وہ چیف منسٹر ہے, اور پورے پاکستان کا انچارج جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. تو
पूरे जहान का इंचार्ज खुदा है, पूरे जहान का। जहान बहुत बड़ा है, रात में देखते हैं ना सितारे वगैरह, सारे जहान आसमान है, सारा कुछ है, उसका इंचार्ज खुदा है। मगर फिलहाल खुदा ने जमीन को शैतान के हाथ में दे दिया। दुनिया का सरदार शैतान है। अब सवाल है कि वो तो शैतान के अंडर आ गए, कैसे बचना? वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हमारे अंदर जो कुछ है ना वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया का इंचार्ज तो शैतान है, हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह मुझ में है तो फिर तो दुनिया के मुकाबले में हम ज्यादा अच्छे हैं। वो बर्रा के खून, हमने बर्रा का खून समझ लिया कि यीशु मसीह का खून बहाया गया और उसको हमने कबूल करना है ताकि हम निजात पा सकें और अपनी गवाही के कलाम के बायस हमने गवाही देनी है, गाँ से नहीं। उस पर गालिब आए हम आगे जाकर देखेंगे। जब हम मुंह से बोलेंगे ना फिर हमें वो बर्रा के खून से हासिल से निजात मिलेगी। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के नाम से। दिल से मान लाना होता है और मुंह से इकरार किया जाता है। और निजात के लिए एलानिया इकरार जरूरी है। वो क्यों? आप जवाब दें, सोचें। मैं इसका जवाब दूंगा अगर आपके दिल में आ रहा है। क्यों बोलना इंचार्ज? इसलिए कि दुनिया का जो इंचार्ज है वो भी सुन ले, उसको भी पता लग जाए कि ये यीशु का बंदा है। अगर मैंने दिल में कह दिया आज यीशु ठीक है मैं तेरा बंदा हूँ ना, तभी से हम गीत गाते हैं, दिल में भी गा सकते हैं। आज का तो टॉपिक नहीं है, ऊंची आवाज़ में जाते हैं ये बाजे तबले के साथ, साजों के साथ। क्यों? ताकि ऊंची आवाज़ में जब गीत गाएं तो क्या होगा? गीत गाने से क्या होता है? इबादत का एक हिस्सा है गीत गाना। इससे अबलीसी ताकतें दूर हो जाती हैं। बहुत सी गवाही हैं, गीत गाने से अबलीसी ताकतें दूर हो जाती हैं। और अपनी गवाही के कलाम के बाद जब आप मुंह से बोलेंगे, एलानिया इकरार करेंगे कि आज से यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात देंदा खुदावंद है, तो फिर हम निजात पाएंगे। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाद उस पर गालिब आए। मैं कितनी बार ये आयतें बोलूँगा और भी बोलूँगा। आखिर में काश खुदा में तौफीक अनायत करेंगे इस बात को हम याद रख सकें कि वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। बात हो रही है कि अपनी गवाही देनी है, उससे क्या होता है? ताकि एक मजबूती आती है और इब्लीस को पता लग जाता है कि ये मेरा बंदा नहीं है और खुदा हमें आगे बढ़ाता है। तो खुदा का हिस्सा क्या है? खुदा ने तो अपना काम कर दिया, सलीब पर मसलूब हो गया। अब मेरा हिस्सा क्या है? गवाही, एलानिया गवाही करना, ईमान से यकीन करना कि यीशु मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ था और एलानिया इकरार करना। तो क्या होगा फिर? एलानिया इकरार करने के बाद क्या होगा? वो उस पर गालिब आए। तीसरा हिस्सा, गलबा हासिल करने के लिए ऐसे नहीं होता है। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि आजमाइश के साथ खुदा रास्ता बताता है कि रास्ते चले। फतह हासिल, हर बंदा चाहता है कि मैं फतह हासिल करूं किसी तरीके से, खानदान में, लोगों में, सियासत में। फतह हर बंदा चाहता है, फतह ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि बर्रा खून बहाया गया, उस पर यकीन करें और एलानिया इकरार करें और फिर फतह मिलेगी। याद रहे, फतह हासिल करने के लिए ज़रूरी है वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो हमारा काम क्या है? एलानिया इकरार करना है, शख्सी गवाही देनी है। यीशु के पास शैतान आ गया, 3 आजमाइशें की और यीशु ने फतह पाई। कैसे पाई? तरीके से। शैतान जो है ना ऐसी नहीं है। शैतान को बाइबलें आती है, बाइबल की आयतें आती हैं,
ये समझे कि बाइबल बोर्ड है तो बंदा खुदा हुआ ना। शैतान को बाइबल की आती हैं तो मसीह ने क्या किया, बाइबल से उसका जवाब दिया, बाइबल से उसका जवाब दिया और फतह पाई। तो गोया कि जब हमने फतह पानी है पहले हमने देखना शैतान के हथियार क्या हैं, शैतान के हथियारों के मुताबिक हम उसके मुताबिक चलना होगा। ऐसे ही नहीं कि बगैर सोचे सोचे डंडा पकड़ेगा या बंदूक पकड़ी तुरबे मार देना ना। एक ज़माने में जब थोड़े लोग थे तो जो जंगी लोग जो कहते हैं या नेटिव कहते हैं उसके बहुत से अल्फाज हैं, उनके पास होती थी डंडे या ज़्यादा तलवारें होती थी, उनसे जो आते हैं शैतान उनको मारते थे, मार जाते थे। तो कुछ लोग तेज थे, नाम क्या लेना, उन्होंने कहा नहीं डंडों से बात नहीं करेंगे, उन्होंने बंदूकें पकड़ ली। जी जब ये आएंगे डंडे लेके तो बंदूक से मारेंगे, उनको नहीं पता था कि बंदूक क्या होती है। तो इब्लीस के हथियारों को समझना जरूरी है, उसके पास क्या चीज़ है, उसके मुताबिक हमने फतह पा ली है। और से सुने बात क्या कह रहा हूँ मैं, बात लंबी नहीं करूँगा मैं, बड़ी काम की बात कर रहा हूँ आपके लिए। फतह हासिल करनी है, उसके हथियारों को जानना है क्या हथियार है, फिर बात बनेगी, वैसे नहीं बात बनेगी। दाऊद जो था उसने दुश्मनों पर फतह पा ली, उसने पहले खुदा से पूछा, खुदा मैं दुश्मनों पर फतह पाना चाहता हूँ, क्या करूँ। खुदा ने कहा कि इस रास्ते से ना जा, गौर से बात को सुने, फतह पाने के लिए तरीका चाहिए। उसने कहा कि यहाँ से ना जा बल्कि दूसरी तरफ से होकर फिर कर जा, और जब तू तूतों के दरख्तों के ऊपर आवाज़ सुनेंगे हल्की हल्की तो फिर हमला करना, फिर फतह पाएगा तरीके से। तो हमने फतह पानी दुश्मन पर उसके हथियारों को समझ कर, और उसके बाद वैसे नहीं पानी। लोगों को बदरू हो जाती है, उसको बदरू निकालने के लिए ऐसे ही कि दुआ करके बदरू निकलेंगे ना, हमें देखनी है किस किस्म की बदरू है और कैसे उस पर फतह पा सकते हैं। बस इन्हें क्या कहा, ये चीज़ दुआ के बगैर नहीं निकल सकती है। बाज़ बदरुएं कमज़ोर होती हैं, बाज़ बदरुएं जो तेज़ होती हैं, बाज़ बदरुएं होती बीमारियाँ कह लें, यीशु के नाम से शिफा मिल जाती है, सादा कोई काम नहीं, यीशु के नाम से मैं तुझे शिफा देता हूँ, ईमान से फौरन शिफा मिल जाती है। और बाद औक़ात मेहनत करनी पड़ती है, दुआ करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम फतह पा सकते हैं। एक ही फतह पा सकते हैं, यीशु का नाम। पूरी दुनिया में और कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है यीशु, उससे फतह मिलती है और किसी नाम से नहीं मिलती है, याद रहे। आपने सुना होगा रुस्तम का नाम चलता है, रुस्तम का नाम सुना होगा, बड़ा बड़ा पहलवान था, कहानियों में सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद नहीं सुना। तो एक बार उसका घोड़ा जो था ना वो चोरी करके ले गया। रुस्तम का घोड़ा खुद तगड़ा था, पहलवान था, उसका घोड़ा ही तगड़ा था। एक आया चोर, उसने घोड़ा पकड़ लिया, ले गया। अब उसने कहा कि क्या करूं, रुस्तम का नाम तो बड़ा मशहूर है, उसको पता था, उसके पीछे भागा, पहलवान था ना, और भागते भागते उसको घोड़े वाले को कहा कि खलो जा। कहता तू कौन है, कहता मैं रुस्तम दा नौकर है। वो डर गया, कहता ये रुस्तम का नौकर इतना तगड़ा है तो रुस्तम खुद क्या होगा, हालांकि वो खुद रुस्तम था। उसने कहा नहीं, उसका नाम चलता है। उसने कहा अच्छा तू नौकर इतना तगड़ा है, ले जा घोड़ा। यीशु का नाम, यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम से बीमारी जाती रहती हैं, और यीशु के नाम सब कुछ होता है। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। खुदा में तौफीक इनायत करे कि हम इस बात को सीखें कि किस तरीके से यीशु के नाम में फतह, वैसे नहीं, और उसका तरीका है ऐसे नहीं है, वैसे ही नहीं बेकार बोलते जाना, समझ कर दिमाग लगा के यीशु का नाम लेना है और उसके नाम से फतह मिलेगी। बीमारी जाती रहेगी और कोई मसला हो जाता रहेगा। वो बर्रा के खून अपनी गवाही के नाम उस पर वाली पाए। अक्सर वक्त जब हम पैगाम सुनते हैं, नहीं समझ आप सुन रहे हैं, तो बाद वक्त आपका ध्यान आगे भी चले जाते हैं। मुझे नजर आ रहा है कई को लोग ध्यान आगे भी जा रहे हैं, क्यों पता आपको? इसलिए कि शैतान जो है ना
वो इंचार्ज है, वो आपके जहन पर कब्जा कर लेते हैं कि ए कलाम ना सुनो, कलाम सुनोगे तो बदल जाओगे। बाइबल ऐसी है कि ये लोगों को बदल देती है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम सुनते हैं तो ईमान पैदा होता है, ईमान से निजात हासिल होती है। वो पालूस रसूल जा रहे थे, उसके साथी नहर के नदी के किनारे एक जगह देखी, दुआ करने की जगह रुक गए और कुछ लोग बैठे दुआ कर रहे थे वहाँ, उनके साथ दुआ करने लगे। और एक बीबी थी, वो भी सुन रही थी और भी सुन रहे थे। उसके ज़हन को खुदा ने खोला ताकि कलाम को सुने। जब उसने कलाम को सुना तो ईमान ले आई और निजात हासिल की। वो बोल रहा कि खून अपनी गवाही के कलाम के बाद उस पर गालिब आए। तो आपको भी आज का पैगाम यही है कि जब भी आप कलाम सुने तो खुद अपने लिए दुआ करें, खुदा जो कि मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, मेरे ज़हन नशीन हो, उसके वसीला से मुझे क्या मिले? फतह। मैं गलबा फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। ऐसी नहीं फतह हासिल करनी है। सौरभ सुंदर सिंह था और जादूगरों ने उसको पकड़ लिया और जादू करने लग पड़े। गाड़ी में जा रहा था, जादूगर बड़ा मान में था जी। कहता जी खलो जा, तू कौन है? कहता मैं मसीह का बंदा है। कहता मैं तेरे जादू करांगा, तेरा खत्म हो जाए सब कुछ। कहने का जादू कर। वो जादू बेकार हो गया, नहीं चला। उस जादूगर ने कहा कि तेरे जेब में कोई चीज़ है जिसकी वजह से मेरा जादू असर नहीं कर रहा है। उसके जेब में अंजील थी, उसने निकाल दी, अंजील निकाल के रख दी। जादूगर कहते हाँ जी हम जादू पढ़ा, फिर असर ना हुआ। जादूगर कहता कि कुछ और तेरे ज़हन में चेगा, मेरा जादू तेरे तो नहीं चल सकता। क्या था उसमें? अंजील, कलाम। जो हम कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, सुनते हैं, उसको ज़हन नशीन करना है। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो क्या होगा? फतह से बढ़कर गलबा मिलेगा। और उसकी कंडीशन बता दी है, वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। याद रहे, ऐसी फतह नहीं मिल जाएगी। तरीका है, तरीके के पीछे थोड़ा सा बुनियाद है यीशु। और उससे पहले कि यीशु कौन है? जो दुनिया में आया, मेरी खातिर मसलूब हुआ। वो अक्सर का होता है कि हम भूल जाते हैं, कैसे फतह मिलेगी? ऐसे नहीं मिल जाएगी। वो हमारे मोहल्ले में एक बार मोहल्ले दो लड़के, एक ने बंदूक फाड़ लेती नाल खंबे। तो बाकी कह रहा यार तू तेने ये बंदूक चलाने नहीं आती थी, फड़ी क्यों? है जी, वो हथियार तो ले ले, पता तो लगे कौन सा हथियार है, इसके पीछे कौन है। खाली फतह नहीं मिलेगी, हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह शख्सी निजात खुदावंद है और ईमान इकरार करे उसका, फिर फतह से बढ़कर काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात खुदावंद कबूल करें। और फिर क्या होगा? वो बर्रा के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। खुदा हम सबको बरकत है। उससे पहले 1 मिनट की मैं बात करूँगा। किसी को ये आयत याद होगी है? ऊंची आवाज़ में बताए, अगर छोटा बच्चा ज़्यादा, वो मैं आपकी मदद करता हूँ। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।